کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. کیوں کیا تجسس اتنا 6 گھنٹے کا سفر کیا بائک پہ؟ بھائی 16 گھنٹے کا بھی ہوتا تو بھی کر لینا. اللہ اکبر. وہ کیوں؟ علی بھائی سے محبت اتنی ہے. امت کا سب سے بڑا فتنہ اس کو دیکھنے آیا. عربی والا. ان سے محبت اس لیے آئے ہیں، تھوڑا سا دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں. دین تو علماء سکھاتے ہیں یار، انجینئر کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. وہ علماء دین وہ صرف اپنا فرقہ بنا چاہنے کے لیے بتاتے ہیں. انجینئر صاحب کا پچھلا لیکچر آیا تھا ایران اسرائیل وار کے اوپر، تو بڑا وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے جی انجینئر ایران کے خلاف ہو گیا ہے. آج بھی وہی ٹاپک تھا، آپ آئے ہوئے ہیں. کیا انجینئر صاحب واقعی خلاف ہیں ایران کے؟ وہ تو نیگیٹو ہوا تھا، لیکن جس بندے نے نیگیٹو کروایا تھا آج وہ بھی مجھے پوچھتا ہے کہ انجینئر صاحب کی نئی ویڈیو آئی ہے یا نہیں ہے. اچھا یعنی وہ بھی گمراہ ہو گیا. اچھا مرزا علی انجینئر اگر بتاتا ہے تو یہ دیکھنا، جب باتیں تو حسین کی کرتی ہیں اور جب کھڑا ہونے کا ٹائم آتا ہے تو یزید کے ساتھ ہو جاتا ہے. جی میں بھی آج یہی سوال لے کے گیا تھا، لیکن وہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے بالکل وہ سوال کلیئر کر لیکن دیا. عوام میں یہ چیز وہی آ رہی ہے نا. اگر کسی بھی عالم دین کو کسی بادشاہ کی چوکھٹ پہ دیکھو تو اس کے ایمان پہ شک ہے. صحیح ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب تو بہت زبردست انسان ہے، لیکن کچھ چیزوں سے میں ان سے اختلاف کون سی چوکھٹ پہ دیکھا آپ نے؟ کہ ان کا جو ہے نا حسینیت کا جو ایک ان کا پیمانہ ہے وہ بھی آئے دن چینج ہو جاتا ہے نا، وہ بھی چینج نہیں ہونا چاہیے. ان کا یا عوام الناس نہیں، عوام الناس وہ کبھی کس کو حسین بنا دیتے ہیں، کبھی کس کو حسین بنا دیتے ہیں. کوئی کم علم والا ہے وہ بھی سمجھ جاتا ہے اور کوئی زیادہ علم والا بھی نہیں سمجھ پاتا. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے جتنے بڑے بڑے نام ہیں یہ کم علم ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انجینئر سے یاد نہیں ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ادھر کیا کرنے آیا پھر؟ ادھر مرزا صاحب کے پاس آئے ہیں، علی بھائی کے پاس. جھوٹا دجال قادیانی سچا. امت کا سب سے بڑا فرقہ. میں نہیں کہہ رہا یار، عالم دین کہتے ایک ہی ہیں. فکر ہے ان کا. ہاں میرے نبی صاحب ہے ہی کون ہے، میرے باپ پہ تو ہے ہی کون ہے، یہی مجھے ادھر لے کے آئے. اللہ اکبر. تو جو آپ جیسے کہ اتنے ٹک ٹاکر ہیں اور وہ جو جعلی اسٹوڈنٹ بنے ہوئے ہیں اور وہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہم استاد کو چھوڑ رہے ہیں، نہیں تو ان کو کیا کہتے ہو؟ ان کو یہی کہتے ہیں کہ وہ فراڈی ہیں. وہ فراڈی ہے. چاند بریانی کے پلیٹ پہ بک جائیں گے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں. میری بات سنیں، اگر علی بھائی نے ہمیں بزدلی سکھائی ہوتی نا تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بریلوی اور دیوبندیوں سے مسئلہ نہ لگاتے. اللہ اکبر. 15-20 بھی اکٹھے ہو جائے نا ایک جگہ پہ، تب بھی ہم اللہ کا فضل ہے کبھی ڈرے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہنم اکیڈمی محمد فرحان قریشی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حال میں ریکارڈنگ ختم ہو چکی ہے. آج سیشن نمبر 204 کی ریکارڈنگ تھی جو الحمدللہ ختم ہو چکا ہے. حال میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں اب ہم ان سے کچھ بات کرتے ہیں. تو آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام بھیا؟ عبدالواحد. عبدالواحد بھائی کدھر سے آئے ہو؟ فیصل آباد سے. فیصل آباد سے. خیر خیریت؟ ہاں جی الحمدللہ. گرمیاں، لمبا سفر؟ بائک پہ آیا ہوں. بائک پہ کتنا ٹائم لگا؟ 6 گھنٹے. بڑی جلدی آ گیا پھر بھی بائک پہ. 6 گھنٹے. ہاں جی الحمدللہ. اچھا جی ماشاءاللہ. ٹھیک رہا سفر؟ ہاں جی بہت اچھا. کیوں کیا تجسس اتنا 6 گھنٹے کا سفر کیا بائک پہ؟ بھائی 16 گھنٹے کا بھی ہوتا تو بھی کر لینا. اللہ اکبر. وہ کیوں؟ علی بھائی سے محبت اتنی ہے. امت کا سب سے بڑا فتنہ اس کو دیکھنے آیا. ہاں بالکل. عربی والا. نہیں وہ تو کہتے ہیں، علماء تو کہتے ہیں. علماء کی کون سی بات، علماء تو اور بھی بڑا کچھ کہتے ہیں. ہاں ہاں ہاں. ہم تو علی بھائی کی محبت میں آئے ہیں. انہوں نے اتنی زیادہ چینجنگ کر دی ہے ہمارے اندر، اس لیے ہیں. چینجنگ کر بہت زیادہ. کیا خاک چینجنگ کی ہے؟ یہ ہر کوئی جو کرنٹ افیئر دیتے ہیں وہ وائرل ہو جاتا ہے. اب انہوں نے پچھلا ایران اسرائیل وار کے اوپر بات کیا، دیکھیں نا بزدل بنا رہے ہیں ایران کو، کہہ رہے ہیں جھک جا. بات سمجھنے والی ہے. اچھا بس ہمیں کسی کو سمجھ آتی ہے، کسی کو نہیں سمجھ آتی. اللہ کا شکر ہے ہمیں تو سمجھ آتی ہے کیا کہتے ہیں. اچھا. باقی بزدلی نہیں سکھائی ہے. اللہ کا شکر اٹھاتے ہے. میری بات سنیں، اگر علی بھائی نے ہمیں بزدلی سکھائی ہوتی نا تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بریلوی اور دیوبندیوں سے مسئلہ نہ لگاتے. اللہ اکبر. 15-20 بھی اکٹھے ہو جائے نا ایک جگہ پہ، تب بھی ہم اللہ کا فضل ہے کبھی ڈرے نہیں ہیں. کبھی بھی ڈر نہیں آیا، دماغ میں آیا نہیں. اگر بزدلی سکھائی ہوتی نا، اگر آپ کی وہ ایران والی بات سچ ہوتی تو وہ دوسرے معاملے میں پھر ہم بزدل ہوتے. بزدل نہیں ہے اللہ کا شکر. انجینئر نے بزدلی نہیں سکھائی، ورنہ آج ہم
सबको ललकारते नहीं, बिल्कुल। सिस्टम को ललकारते नहीं। बिल्कुल। सही बात, बिल्कुल सही, मजा आया। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस, कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, बस थकावट थोड़ी सी हो गई इधर बैठ के। हाँ हाँ बाकी बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। जैसा सोचा था ना, हाँ। अली भाई की चेयर, ये पहली दफा आया? अली भाई की जो चेयर है ना, वो चेयर देख के ही पता चल जाता है कि ये बंदा इतने साल हो गए बैठा है, कम से कम फॉर्म वाली कुर्सी तो रख सकता था। तो शुक्र है लगा, बहुत जैसे सोचा था वैसे ही है, बल्कि उसके बढ़ गई है। ऐसे बढ़ गया, चलो बहुत शुक्रिया जी। आज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद तलहा। मोहम्मद तलहा, किधर से? मैं तांदले वाला शहर, जिला फैसलाबाद से। जिला फैसलाबाद? जी। ये भी भाई फैसलाबाद से? जी जी। वो तो बाइक पे आया, तू नहीं, कैसे आया? मैं ट्रेन पे आया हूँ। ट्रेन पे आया? जी जी। अच्छा अच्छा, उसके साथ चला जा बाइक पे। नहीं, इंशाल्लाह ट्रेन पे जाएंगे वापस। अच्छा 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 जी, खैर खैरियत है। इतना जी, लंबा बिल्कुल। सफर, गर्मियाँ भी हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी भी पड़ वैसे रही है, इनसे वैसे रात मोहब्बत को बारिश इसलिए हुई थी। है, इनसे मोहब्बत इसलिए आए हैं, थोड़ा सा दीन सीखने के लिए आए हैं। दीन तो उलमा सिखाते हैं यार, इंजीनियर को तो पता ही कुछ नहीं है। वो उलमा दीन वो सिर्फ अपना फिरका बनाने के लिए बताते हैं कि अगर देवबंदी है तो आप सारी ज़िंदगी देवबंदी रहेंगे, अगर बरेलवी हैं तो सारी ज़िंदगी बरेलवी रहेंगे, अगर अहले हदीस हैं तो सारी ज़िंदगी अहले हदीस रहेंगे। लेकिन ये बताते हैं कि अल्लाह कौन है, अल्लाह का रसूल कौन है, अहले बैत कौन है, सहाबा कराम कौन है। सही अकीदा जो है वो सिर्फ मिर्ज़ा अली इंजीनियर ने बताया। अच्छा, मिर्ज़ा अली इंजीनियर अगर बताता है तो ये देखे ना, जब बातें तो हुसैन की करते हैं और जब खड़ा होने का टाइम आता है तो यजीद के साथ हो जाते हैं। जी, मैं भी आज यही सवाल लेके गया था, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने बिल्कुल वो सवाल क्लियर कर लेकिन दिया। आवाम में ये चीज़ वही आ रही है ना। टिकटॉक पे एक लड़का है, वो बता रहा था कि यानी कि सारी ज़िंदगी ये मुनाफिक है, सियासत के मामले में मुनाफिक करता है, फलान करता है, टमकान करता है। फिर मेरा दिल किया कि ना मैं इस संडे जाके ना इनसे सवाल करूं कि आप सारी ज़िंदगी यानी कि हुसैन का दरस देते हैं और फिर यजीद वाले कारनामों पे आप कहते हैं कि ईरान को उनसे डील कर लेनी चाहिए, फलान कर लेनी चाहिए। तो फिर आज जो उनके पूरा बयान सुना है, फिर पता चला है कि असल बात क्या थी। क्योंकि ये क्या बात है फिर असल बात कि यही वाकई है ना यजीद कि के साथ वाकई- खड़े हो गए? हाँ जी, नहीं यजीद के साथ हुसैन के साथ ही खड़े हैं। अच्छा, हुसैन के साथ खड़े हैं, जी, ये मान लिया आपने? हाँ जी, मान लिया। अच्छा और अच्छा, अलहमदुलिल्लाह तो पहले जो से आप मान जैसे लिया। कि इतने टिकटॉकर हैं और वो जो जाली स्टूडेंट बने हुए हैं बिल्कुल। और वो जो ये बातें कर रहे हैं हाँ। कि ये हम उस्ताद को छोड़ रहे हैं, नहीं, तो मैंने- उनको क्या कहते हो? उनको यही कहते हैं कि वो फ्राडी ही लोग हैं। वो फ्राडी है। क्या बिरयानी के प्लेट पे बिक जाएंगे, उनका कोई मसला नहीं है। उनकी समझदारी छोड़ जी, जी। वो नहीं सीख रहे होते, वो नहीं सोच रहे होते जो नहीं। इंजीनियर साहब देख रहे होते। जी जी बिल्कुल। हम अगर इंजीनियर साहब कोई बात करते हैं, हम पहले उसकी तस्दीक लाजमी करते हैं, बेशक अगर वो गलत हो, क्योंकि हमें पता है वो गलत बात कर ही नहीं सकते। क्योंकि आजकल जो क्लिप काट के गुस्ताखी के फतवे लगा देते हैं ना, ये इनके बड़े ये काम पहले से करते आ रहे हैं। इसीलिए इस बारे में कैसा आज का एक्सपीरियंस? बहुत VIP रहा, बहुत मज़ा आया। मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी फ़ोन आया था घर, वो मामू का, वो कह रहा था कि तुम आ गए हो, फितने के पास आ गए हो, फलान है, तुम अपने अब्बू को भी ले आओ। मैं कहा इंशाल्लाह मैं अपने अब्बू को भी ले आऊँगा। कहता हर महीने मुलाकात करवाओ। मैं कहा हर महीने मुलाकात हो जी, इसमें कौन सा काम है, तुम दूसरों को भी गुमराह कर रहे हो, इस तरह फलान है। ये तो घर घर की स्टोरी है। हाँ, रिश्तेदारी में यानी कि कह रहे हैं तुम फितने पे हो, ये दज्जाल से बड़ा फितना है, टमकान है। चलो, ये तो घर घर की स्टोरी है। चल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम फारूक अहमद है। फारूक भाई किधर से आए हो? मैं ननकाना साहब से आया हूँ। ननकाना साहब से, वेलकम जी। जी आया हूँ। थैंक यू सर। कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक कब है। से तारुफ हुआ इंजीनियर साहब का, कब से जानते ये तकरीबन 4-5 साल से मुझे इनका तारफ हुआ। हो? कैसा तारुफ था? मैं नेगेटिव था, दोस्तों पॉजिटिव था? जो पहली दफा सुना। वो तो नेगेटिव हुआ था, लेकिन जिस बंदे ने नेगेटिव करवाया था आज वो भी मुझे पूछता है कि इंजीनियर साहब की नई वीडियो आई है या नहीं है। अच्छा, यानी वो भी गुमराह हो गया। नहीं, हाँ, वो कन्वर्टन कामों में तो आप ऐसा converted बोल काम। सकते हैं, लेकिन converted काम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तौहीद की समझ दी है माशाल्लाह। बड़ा ज़बरदस्त ज़िंदगी का सफ़र चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा जी अच्छा, ये बताओ आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? फर्स्ट टाइम था आपका? जी जी, मेरा फर्स्ट टाइम था। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? ठीक, अकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह, आए, बड़ा वीडियोस ज़बरदस्त में तो रहा। आगे देखता, आज लाइव भी जी, देख जी, लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्ताख है, नहीं साहबा हाँ, पे मेरा बकवास करता ज़्यादा है। ज़्यादा क्या फोकस ये मेरा है बात है? नहीं ऐसा नहीं है। ज़्यादा फोकस मेरा इसी चीज़ पे था कि मैं मतलब बाद औक़ात हम लोगों को देखते हैं कि वो ऑन कैमरा कुछ और चीज़ होते हैं, ऑफ द कैमरा उनका बिहेवियर कुछ और होता है। तो ज़्यादा फोकस मेरा इसी चीज़ पे था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुस्बत जो है ना वो इनको पाया इंजीनियर साहब को। जैसा कैमरे में होते हैं वैसा ऑफ द कैमरा भी होते हैं और एक अच्छे तरीके से डील करते सारी हैं जिंदगी सबको। हुसैन की बातें करते हैं, खड़े यजीद के साथ हो जाते हैं, ये वहाँ पूछ रही है। नहीं, अवाम पूछती है, लेकिन मैं तो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ। अच्छा जी, नहीं, वो कहते हैं कि इसराइल ईरान जंग नहीं, पे अभी वो- देखे, वो वो ठीक कह है। रहे हैं जी झुक जाए, वही ले ले बात है डील। जो थोड़ी देर पहले हो रही थी कि इनका जो है ना हुसैनियत का जो एक इनका पैमाना है वो भी
आए दिन चेंज हो जाता है ना, वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। इनका या अवामुन्नास नहीं, अवामुन्नास अवामुन्नास वो कभी किसको हुसैन बना देते हैं, कभी किसको हुसैन बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हुसैन तो उसी चीज का नाम है ना जो सिर्फ अपने हक के लिए डर जाता है। ठीक है, तो ये तो इंजीनियर साहब अपने स्टांस पे खड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल, मैं तो ऐसे ही समझता हूँ। सही हो गया, आप ऐसे ही समझ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो, चलिए मुलाकात हुई है जी नहीं, अब भी होगी मुलाकात। मिलके हैं। आज है और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भैया? नुमान अकरम। नुमान अकरम, किधर से आए हो? मैं लाला मूसा के साथ। लाला मूसा से? खैर खैरियत है? कैसे आना हुआ? पहले भी इधर आया था मैं, तो साथ मेरे दोस्त दुबई से आया, वो उसको साथ लेकर आए कोई मसले मसाइल को सीखने के लिए, कोई इल्म हासिल करने के लिए तो यही है, इसलिए इधर तशरीफ लाए। उलमा तो कहते हैं इंजीनियर साहब तो इनको तो कुछ भी नहीं पता, जाहिल मुतलक है, और आप कहते हैं मुस्लिम सारे सीखने आ गए हैं। मुझे भी पहले यही तारुफ हुआ था, तो मैं खुद भी दोस्तों को कहता कि यार ना सुना करो ये ऐसे। आप कहते रहे हो? जी, लेकिन अच्छा। जब मैंने इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर इनकी बातें सुनी है, क्योंकि ये हर चीज़ रेफरेंस के साथ देते हैं, कुरान मजीद की कोई भी आयत है रेफरेंस के साथ, फलां सूरत है फलां आयत है, हदीस का रेफरेंस नंबर देते हैं, तो उसका तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना, कुरान हदीस का इनकार। तो इनकी बातें जो है वो अच्छी लगी, फिर मैंने को फॉलो किया। तो जो दोस्त हैं उनको भी बताया कि आप भी फॉलो करो, इनकी बातें सुनो, जो हक बात करते हैं। तो बाकी जो मैं पहले रेडी फिरके के साथ लग जाता था, लेकिन जब इनकी बातें सुनी तो काफ़ी जो इल्म हासिल हुआ, मैंने बरात करके अल्हम्दुलिल्लाह बस मुस्लिम है, कब्र परस्ती शिरक वगैरह ये इससे पाक है अल्हम्दुलिल्लाह। इंजीनियर साहब का पिछला लेक्चर आया था ईरान इसराइल वार के ऊपर, तो बड़ा वो सोशल मीडिया पे वायरल है जी, इंजीनियर ईरान के खिलाफ हो गया है। आज भी वही टॉपिक था, आप आए हुए हैं, क्या इंजीनियर साहब वाकई खिलाफ हैं ईरान के? जी, वैसे पता क्या है, वो उन्होंने बात की है कि इस वक्त जो डील कर लेनी चाहिए कि इसमें ही फ़ायदा है। बाद में अगर कोई भी जो असल में हमारा इत्तेहाद नहीं है मुसलमानों का, अगर मुसलमानों का इत्तेहाद हो, सब मुल्क एक हो ना, फिर तो करनी चाहिए जंग। अभी अरब मुमालिक जो है वो इसराइल को देते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अकेला ईरान भी क्या करेगा बेचारा, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अमेरिका और इसराइल के साथ लड़ सके। तो फिर इंजीनियर साहब ने तो रियलिटी बताई ना फिर। जी जी जी, तो डील कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अभी इतना नहीं है आपके पास जो कि आप लड़ सके इतना। लेकिन अगर मुसलमान मालिक सब इत्तेहाद हों तो फिर तो जिहाद तो ज़ाहिर बात है, कुरान में फर्ज है जिहाद करना चाहिए। फर्स्ट टाइम आया इधर, सेकंड टाइम, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आए जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भैया? अम्मार। माशाअल्लाह। अम्माद किधर से? लाहौर से। लाहौर कौन सी जगह से? शादबाग से। शादबाग से। खैरियत? अकेला है? नहीं, साथ दोस्त है। दोस्त है? किधर निकले हो, गर्मी बड़ी है यार। कुछ नहीं, बस इंजीनियर साहब के लिए आए हैं, पहली दफ़ा आए हैं। पहली दफ़ा आया? कब से जानते हैं इंजीनियर साहब को? साल डेढ़ साल हो गया। साल डेढ़ साल। कैसा पाया? बहुत अच्छा पाया। अवाम तो कहती है, उलमा तो कहती है ये फितना है, दज्जाल है और पता नहीं क्या गलत क्या। कहते हैं। अच्छा, मेरे घर वाले कहते हैं, लेकिन तो घर वाले तो ठीक ही कहते होंगे। घर वालों को नहीं, उनको समझाते हैं लेकिन वो नहीं समझते, तो फिर आप चुप कर जाते। जैसे इंजीनियर साहब ने कहा, आपने यही कहा था आप चुप कर जाना आपने, वैसे हम चुप कर जाते हैं। अच्छा, आपको लगता है इंजीनियर साहब ठीक बात करते हैं? हाँ जी, ठीक है। क्या खाक ठीक बात करते हैं? जब भी अभी पिछले ईरान इसराइल की वार के ऊपर उन्होंने बात की है, तो देखें बुज़दिली की तरह वो कह रहे हैं जी वो झुक जाना चाहिए, ये करना चाहिए, तो फिर देखें ना वो लोग कहते हैं हुसैन की बातें करते हैं, के साथ खड़े हो जाता है। नहीं, वो हिफाजत के लिए कह रहे हैं कि वो ईरान की हिफाजत के लिए कह रहे हैं। इस तरह तो वो खून रेजी होगी ज़्यादा, वो हमले करेंगे तो वो तो कहते हैं हमला किया उसने तो खून रेजी होगी, तो शहादत ही है ना, क्या है? तो आप सही कह रहे हैं। नहीं, इंजीनियर साहब फिर गलत कह रहे थे? नहीं, गलत ये सब ठीक कह रहे थे, सही कह रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा। लोगों को समझ नहीं आ ठीक हो गया, चलो मुलाकात हुई है। हाँ जी, हो गई। चलो, जज़ाकल्लाह। आ जाओ भैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? तसव्वुर हुसैन। तसव्वुर भाई किधर से? गुजरात से। गुजरात से। खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक रहा सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा सफ़र? जी बिल्कुल ठीक। बाइक पे आए हो? जी बाइक पे। अकेले हैं? नहीं, मेरा भाई भी मेरे साथ। खैर खैरियत है? कैसे आना हुआ? बस वैसे छोटा भाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लाइक करता है
इंजीनियर अली भाई को। और मेरा जो तल्लक है वो तो जमात इस्लामी से है, मैं रुकने जमात हूँ और माशाल्लाह। कुंजा का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। जी, जी। नवाज इस्लामी को तो हम बड़ा पसंद करते हैं। जी, सैयद जनाब- मददी रहमतुल्लाह अलैह को मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। ज़ाहिर है हमारे मेन उस्ताद वही हैं। जी जी जी। क्योंकि हम जो रहबरो इंजीनियर साहब भी रहनुमा उनके समझते उस्तादों हैं, में से। रहबरो रहनुमा, हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहबर और रहनुमा बेशक, बेशक। और अपना आइडियल उनको समझते हैं। बेशक जी बेशक, क्योंकि इसमें तो कोई शक पूरी कायनात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई इंसान ना आया है और ना कोई आ सकता है। जी जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, इंजीनियर साहब को कैसा पाया? इंजीनियर साहब अच्छे बंदे हैं, लेकिन एक चीज़ से देखे मैं इख्तिलाफी राय रखता हूँ जी जी बताएं। कि जैसा कि दूसरी तरह के लोग हैं ना, वो तो हैं ही इस तरह के हिपोक्रेट। हमारे जितने भी मतलब आम तौर पे गांव में या जिस जगह पे हैं, वो जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि अगर तुसी किसी भी आलम दीन को किसी बादशाह की चौखट पे देखो तो उसके ईमान पे शक करो। सही है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब तो बहुत ज़बरदस्त इंसान है, लेकिन कुछ चीज़ों से मैं उनसे इख्तिलाफ कौन सी चौकट पे देखा आपने? इख्तिलाफी राय की मैं बात कर रहा हूँ। मैं नहीं, इनकी वो बात नहीं हदीस। कर अच्छा रहा, अच्छा, आपने हदीस बताई। हदीस कोट की है मैंने। नहीं तो उनके साथ रिलेट क्या है ये इस हदीस? इख्तिलाफी राय वो ये है कि यहाँ पे ठीक है वो जो बात करते हैं ना, एक दायरे में ठीक है, उनका यूट्यूब चैनल है, दायरे में रह के बात करें, जैसा कि आवाम पे दूसरे आलम दीन के असरात है ना, उनसे थोड़ा हटके करें या उनसे डिफरेंट नज़र आने चाहिए। बाकी बंदे बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन हट नहीं डिफरेंट हैं तो हट आलम नहीं दीन करना को किसी नहीं करते, वो इनके खिलाफ देखिए, हैं। अपना मौक़िफ़ और दलील पेश करे, हाँ जी, हाँ जी। लोगों को हट ना करे। वैसे मैं उनको इल्मी लिहाज से बहुत पसंद करता हूँ, बात इल्मी लिहाज से मैं पसंद करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त सही होगा, इंसान। ठीक होगा। चले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जन? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम महबूब है। महबूब भाई, किधर से आए हैं? हम कराची से हैं। कराची से। खैर खैरियत? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। भाई भी आपके साथ हैं? हाँ जी, ये मेरे भाई हैं, दोनों कज़न हैं, इधर से गुजरात से आए हैं। आपका क्या नाम है? साकिब रहमान। साका भाई। और आप? तसव्वुर हुसैन। तसव्वुर भाई, आपसे तो मेरी बात हो चुकी है। महबूब भाई जी कराची से जी। स्पेशली आए हैं हाँ जी स्पेशल। इंजीनियर साहब को मिलने? हाँ जी। क्यों, आपको बंदा और को नहीं मिला? गुमराह आदमी, उम्मत का सबसे बड़ा फितना। ये बस ये समझ की बात है, जिसको समझ आ जाए उसके लिए तो गुमराह नहीं है, और जिसको ना समझ बड़े वो तो वही कहते इसको नहीं समझ समझना। की बात है ना। कोई कम इल्म वाला है वो भी समझ जाता है, और कोई ज़्यादा इल्म वाला भी नहीं समझ यानी पाता। आपके कहने का मतलब ये जितने बड़े बड़े नाम हैं हाँ ये जी। कम इल्म है, इनको पता ही नहीं है कि इंजीनियर सही आदमी है। हाँ जी, यही कहना चाह रहे बिल्कुल हैं? ऐसे ही है, ठीक हो गया। क्योंकि मैं कम इल्म रखता हूँ लेकिन मुझे समझ आ गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। जो ज़्यादा इल्म रखते हैं उनको भी नहीं समझ आई, तो फिर वो ये कम समझ तो इल्म- उनको बड़ी है, वो फिर हाँ। वो दरअसल पर्दा हाँ करना चाह रहे हाँ, हैं। रोजी रोटी का भी मामला है ना। ये बताएं, इतना लंबा सफर किया, इनको कब से जानते हैं? ये मेरा एक भाई है, उधर काम करते हैं, उसके पास है कराची 4 साल से। जब कोरोना ख़त्म हुआ ना, मैं कोरोना के दौर में गया, तो वो भाई ने बताया, तो भाई के कहने पे मैं सुनने लग गया। तो पहले मैं किसी फ़िरके वगैरह से वाक़फ़ नहीं था, तो तब से पता चला। और पहले दरबारों पे मैं तो सीढ़ियाँ चूमते हुए जाता था, तो अल्लाह का फजल है कि अब सारा समझ आ चुका है। अच्छा, अब समझ आ चुका है। हाँ जी। अच्छा, आप कहते हैं और इंजीनियर नमाज साहब भी बड़े रफल ध्यान से पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, आप कहते हैं इंजीनियर साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, हाँ जी। बातें वो सहन की करते हैं, खड़े यजीद के साथ हो जाते हैं। ये भी तो आजकल यंग जनरेशन है, वो भी तो ये पूछ रही है ना। इंजीनियर साहब के स्टूडेंट है, वो कहते हैं सहन के साथ बातें करता है, यजीद के साथ खड़ा हो जाता है। आपको लगता है ऐसे ही है? नहीं, अच्छा, ये सारे सिर्फ लोगों के ना समझ होने की बात है। इस बारे में भी लोग ना समझ आ। हाँ जी। वो कहते हैं जी इसराइल ईरान वार थी और वो आगे खड़े हो गए जी ईरान। इल्म की कमी। इल्म की कमी। मेरा अभी हम आए जिस वजह से, मेरा एक भाई है, तो वो काफ़ी देर से लगा हुआ था कलमा पढ़ने के लिए, वो दूसरे मज़हब से हैं। तो उनकी कोशिश थी कि दिल मुतमइन हो जाए, अपने घर वालों को मना लूँ, लेकिन काफ़ी अरसे से लगा हुआ था, घर वालों को नहीं मना पा रहा था। तो अभी खुद ने हिम्मत करी अल्लाह पाक की तौफीक से, तो उसने मुझे बोला चलेंगे। तो मैंने उससे वादा करा हुआ था, मैंने कहा जब भी आप बोलेंगे तब किसी भी हाल होगा, कोई भी हाल होगा, मैं आपके साथ हूँ और इंशाल्लाह उसी वक्त जाएंगे। तो भाई ने इरादा करा है, तो हम कल पहुँचे हैं और आज की वापस की टिकट है। मुलाकात भी हुई है? नहीं, मुलाकात के लिए अभी जाएंगे, वो भाई से रब्ता करा है, तो उन्होंने बोला लास्ट पे आना आप। चलो, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जन? मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई किधर से? हम पाकपतन से आए हैं। पाकपतन, आप तो पहली पाक धरती से आए हैं। पहली। इधर क्या करने आए फिर? इधर मीरा साहब के पास आए हैं, अली भाई के पास। झूठा दज्जाल, ना, ना, कादियानी, सच्चा, उम्मत का सबसे सच्चा, बड़ा सच्चा। फितना। मैं नहीं कह रहा यार, हाल में दीन कहते एक ही हैं। फिक्र है उनका। हाँ, मेरे नबी साहब है ही कौन, तेरे बाप पे तो है ही कौन, यही मुझे इधर लेके आया। अल्लाह अकबर, यही आपको लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर ये बड़े बड़े आलिम दीन इस तरह क्यों करते हैं?
बस शिरक करते हैं। शिरक करते हैं। इंजीनियर साहब को कब से सुन रहे हो? मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हुआ है, बातें समझ आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक तासुर ये पाया जाता है इंजीनियर साहब बातें हुसैन की करते हैं, खड़ी यजीद के साथ हो जाते हैं। नहीं यार ये तो तासुर पाया जाता है, झूठे स्टूडेंट, जाली स्टूडेंट गलत आते बताते हैं सोशल मीडिया पे आके, वो गलत बातें कर बताते रहे हैं, हैं, झूठ बोलते हैं। हाँ झूठ बोलते हैं। अच्छा। वो हुसैन के साथ ही है शुरू से। सही हो गया, हुसैन के साथ ही खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा, वो जो जाली स्टूडेंट है वो कहते हैं जी हम लाने बरात कर रहे हैं। उनको लोगों ने भड़काया होगा। अच्छा, अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दी। मुलाकात की है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।